हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ tan 3 theta equal to root 3 then find the value of theta by 2. हमारा गिवन है tan 3 theta equal to root 3. tan 60 का वैल्यू रूट 3 है सो दैट हम रूट 3 के जगह tan 60 लिखेंगे. So cancelling tan on both sides, then 3 theta equal to 60 degree, then theta equal to 60 by 3, that equal to 20. Therefore theta by 2 equal to 20 by 2, that equal to 10. So that the correct option is D. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x is the LCM of 4, 6, 8 and y is the LCM of 3, 5, 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true? So x दिया हुआ हमारा 4, 6, 8. 4, 6, 8. तो 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. 6 को 2 मल्टीपल 3 लिख सकते हैं. 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं. सो दैट एलसीएम ऑफ x आएगी हमारा 2 क्यूब मल्टीपल 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 का 3 है. सो दैट 2 3 एक्स्ट्रा हमारा 3 है. सो दैट एलसीएम ऑफ x इक्वल टू 2 क्यूब एंड 3. देन y इक्वल टू 3, 5, 7. सो इसको मल्टीपल करेंगे हमारा आंसर आएगा 105. तो P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y दिया हुआ. x एंड y. तो x का हमारा क्या है 2 क्यूब एंड 3. यहाँ पर आपका 3 कॉमन आएगी. द एक्स्ट्रा हमारा क्या है 5 मल्टीपल 7, 35. तो x का आपका 2 क्यूब मल्टीपल 3, सो 35x. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k for which the system of linear equation 6x plus y equal to 3k and 36x plus 6y equal to 3 have infinitely many solutions is. तो infinitely many solution का मतलब हो गया हमारा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. तो a1 हमारा 6 हो गई, a2 36 हो गई, b1 हमारा 1, b2 6 है, c1 हमारा 3k, c2 3. सो ये 6 और 36 1/6 हो गया. सो k का वैल्यू 1/6. So the correct option is B. Next question है if alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x equal to x squared minus ax minus b, then the value of alpha plus alpha beta is equal to. देखना p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए एक्स माइनस बी. हमारा अल्फा ब्लड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन ये यहाँ पर बनना, दैट इक्वल टू ये। देन प्रोडक्ट ऑफ 0 alpha plus beta equal to c by a. Here c is minus b and a is 1, that equal to minus b. So that alpha plus beta plus alpha beta equal to a minus b. So that the correct option is C. The next question is, if x by 12 minus 3 by x equal to 0, then the value of x is. हमारा given है x by 12 minus 3 by x equal to 0. हम LCM लेंगे, नीचे 12x आएगी, क्रॉस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर minus 36 equal to 0, x equal to plus or minus 6. Therefore हमारा आंसर is plus or minus 6. हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x upon 4 plus y upon 6 equal to 1 intersect x axis and y axis respectively at P and Q. The coordinates of the midpoint of the segment PQ are. Then x equal to 0. If y axis intersect at x, then x equal to 0. So that हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. If x equal to 0, then y equal to 6 हो जाएगी. If y equal to 0, then x equal to 4. So 0,6 हमारा पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी और 4,0 यहाँ पर होगी. तो ये लाइन ऐसे आपको आएगी. तो P का पॉइंट हो गया हमारा 0,6 and Q पॉइंट 4,0. So we have to find the midpoint of PQ. तो midpoint find out करने के लिए फार्मूला है x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So that 0 plus 4 by 2, 6 plus 0 by 2. So that 4 upon 2, 2, 6 by 2, 3. That correct option is A. The next question is, if tangents PA and PB drawn from an external point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, then the measure of angle POA is. एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है. एंगल P हमें गिवन है 80 डिग्री दिया हुआ. सो आपका वो P ये 40 डिग्री हो जाएगी एंड देन ये आपको 90 डिग्री होता है. सो दैट हम 180 में से इन दोनों का प्लस करके माइनस करेंगे, हमारा एंगल POA मिल जाएगी. सो 180 माइनस 40 plus 90 degree. Then 180 minus 130
that equal to 50 degree. Therefore, the correct answer is 50 degree, option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू. cot थीटा का हमने लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, tan को साइन अपॉन cos लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, सो दैट ये 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा हो जाएगी. वन अपॉन साइन को हमने कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, सो दैट वी गेट द आंसर कोसेक थीटा into sec theta. So the option is A. The next question is, if two triangles, triangle DEF and triangle PQR, angle D equal to angle Q and angle R equal to angle E, then which of the following is not true? तो हमारा गिवन है दो ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF and PQR, इसमें एंगल D equal to एंगल Q, angle R equal to angle E. By BPT theorem, के अकॉर्डिंग DE अपॉन QR equal to EF upon PR equal to DF upon PQ. सो इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा इक्वल नहीं हो रहा. आप ऑप्शन डी हमारा ट्रू नहीं है, सो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. If the volumes of two cubes are in the ratio 8:125, then the ratio of the surface areas is. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया हुआ, हम इनकी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो वी गेट द साइड ऑफ द क्यूब, टेक द क्यूब द रूट ऑफ 8 and 125, वी गेट द साइड्स 2:5. सरफेस एरिया का फार्मूला 6a². तो 6 बोथ साइड कट जाएगी, तो स्क्वायरिंग ऑन 2 and 5, 4:25. तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. The next question is, if the area of a sector of a circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter squared, then the length of the corresponding arc of the sector is. हमें गिवन है एरिया और रेडियस दिया हुआ. एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है थीटा बाई 360
मल्टीपल पाई आर स्क्वायर्ड इक्वल टू 54 पाई। तो हमें रेडियस भी यहाँ गिवन है तो वो पुट कर लेंगे। पाई को एज इट इज रख लीजिए, वैल्यू देने का जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ऑप्शन भी पाई में दिया हुआ। तो आर स्क्वायर 36 मल्टीपल 36 दैट इक्वल टू 54 पाई। सो बहुत तरफ पाई पाई कैंसिल हो जाएगी। देन ये 36 और ये 360 कटेगी 10 टाइम्स। देन थीटा इक्वल टू 54 मल्टीपल 10/36। ये इस तरफ लेके आ जाएंगे, रिवर्स में हो जाएगी। सो इसको काट दें। 6 6 आर 36, 9 6 आर 54। देन 6 and 9, 2 3s आर 6, 3 3s आर 9। देन ये 2 and 10 कटेंगे 5 टाइम्स। थीटा इक्वल टू 3 मल्टीपल 5 15 डिग्री। तो हमें थीटा फाइंड आउट कर लिया। थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। देन लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला थीटा बाई 360 मल्टीपल 2 पाई आर। सो थीटा हमारा 15 है। 15/360 2 मल्टीपल पाई मल्टीपल आर दिया हुआ 36। देन हम इसको काटेंगे। 36 और 360 को 10 टाइम्स कटेगी एंड 2 और 10 5 टाइम्स, 5 and 15 3 टाइम्स। सो दैट इक्वल टू 3 पाई। So the correct option is option D 3 pi. The next question is, a die is thrown once. The probability of getting a number which is not a factor of 36. हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें 1 से लेके 6 तक का नंबर मिलेगी। सो दैट द पॉसिबल आउटकम्स n of s equal to 6. P of probability of getting a number is not a factor of 36. Getting a number is not a factor of 36. So here कौन सा नंबर आपका 36 का फैक्टर नहीं बनेगी? ओनली द नंबर इज 5. सो द आंसर इज 1/6. So the correct option is C. The next question is, if the mean of 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5 is 7, then the value of x is. So that mean find out करने के लिए फार्मूला है sum of all observation upon total number of observation. So given number का हम प्लस कर लेंगे पहले। 2 plus 9 plus x plus 6 2x plus 3
प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 अपान में 7 दैट इक्वल टू 7। तो हमें मीन दिया हुआ 7, सो दैट 7 को इक्वल करेंगे। तो इस सब नंबर को हमें प्लस करेंगे तो 40 प्लस 3x आएगी अपॉन 7 दैट इक्वल टू 7। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर 7 को, 40 प्लस 3x इक्वल टू 49। So 3x equal to 49 minus 40. Therefore x equal to 9 by 3, that equal to 3. So that the correct option is D. The next question is AOBC is a rectangle whose three vertices are A of 0, 2, O of 0, 0 and B of 4, 0. The square of the length of its diagonal is equal to rectangle AOBC. ए का पॉइंट दिया हुआ 0, 2 का पॉइंट दिया हुआ 0, 0 एंड बी का पॉइंट दिया हुआ 4, 0. फाइंड द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ए बी। सो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के लिए फार्मूला है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर्ड प्लस y2 minus y1 the whole square. That equal to x2 0 minus 4 the whole square plus 2 minus 2 whole square. 4 squared 16, 2 squared 4, that equal to root 20. तो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू रूट 20। तो हमें ये पूछा हुआ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल होकर हमारा आंसर आएगा 20। सो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज zeros of the polynomial p of x equal to x squared minus 3 root 2x plus 4r. सो हम ये मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। ये एक्स स्क्वायर्ड, ये प्लस 4 को मैं एज इट इज़ रख रही हूँ। ये माइनस 3 रूट 2x को स्प्लिट करके लिख रही हूँ माइनस 2 रूट 2x माइनस रूट 2x। इन दोनों में से x कॉमन को बाहर निकाल रही हूँ, तो बाकी x माइनस 2 रूट 2x को ब्रैकेट के अंदर पुट कर रही हूँ। देन इन दोनों में से ये माइनस रूट 2 को मैं बाहर निकाल रही हूँ, बाकी x माइनस 2 रूट 2 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। हमेशा ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए। अब इन दोनों में से x माइनस 2 रूट 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल रही हूँ। बैलेंस x माइनस रूट 2।
सो दैट हमारा जीरोस आ जाएगी x इक्वल टू 2√2 and then √2. Option is B, 2√2 comma √2. The next question is, in the given figure, in triangle ABC, AD perpendicular BC and angle BAC equal to 90 degree. If BC equal to 16 centimeter and DC equal to 4 centimeter, then find the value of x. हमारा गिवन दिया हुआ AD perpendicular BC, AD perpendicular BC. AD perpendicular BC and then angle BAC equal to 90 degree. Angle BAC equal to 90 degree. BC equal to 16 centimeter. DC equal to 4 centimeter. Then BD equal to, हम BD फाइंड आउट कर सकते हैं BC में से DC को माइनस करके. सो BD इक्वल टू BC minus DC, that equal to 12 centimeter. BD upon AD equal to AD upon DC, because the sides are proportional. हमने फाइंड आउट कर लिया था BD और CD का वैल्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे. AD स्क्वायर इक्वल टू BD मल्टीपल DC. तो BD हमारा 12 and then DC 4. तो AD स्क्वायर्ड इक्वल टू 48 centimeter. Then AD equal to square root of 48. So AD squared plus DC squared equal to AC squared. AC स्क्वायर हम फाइंड आउट करना है. AD स्क्वायर हमें पता है 48, DC स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगी, दैट इक्वल टू AC स्क्वायर. तो 48 प्लस 16, that equal to AC squared. Therefore AC equal to square root of 64, that equal to 8 centimeter. Therefore the correct option is A. So the correct option is C, 8 meter.
The next question is, a ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance of 6 meters from the wall. If the height of the wall up to which is ladder reaches is 8 meters, then the length of the ladder is 8 meters. So ये मान लेंगे वॉल है, तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ये लेडर आपका ऐसे खड़ा है लेडर, तो लेडर का पोजीशन ऐसा है, तो ये आपका 10 मीटर दिया हुआ लेडर का लेंथ, तो अब द डिस्टेंस 6 मीटर है और ये 8 मीटर दिया हुआ, तो AC स्क्वायर्ड इक्वल टू AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगी, AB स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, देन BC स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, तो इन दोनों का प्लस करेंगे 100 इक्वल टू 100, देयरफॉर द एंगल B इज़ 90 डिग्री आएगी. सो असर्शन A इज़ करेक्ट है, लेकिन रीज़न B आपका रॉन्ग है, इन्होंने B एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, सो दैट हमारा ऑप्शन आएगा C, असर्शन A इज़ ट्रू बट रीज़न R इज़ फॉल्स. हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ टू टेंजेंट्स आर drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. The given statement is true. Then given reason is a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. It is also true statement, so that हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगी आंसर B. Both assertion A and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of the assertion A. The next question is, if 4K equal to tan squared 60 degree minus 2 cosine squared 30 degree minus 2 tan squared 30 degree, then find the value of K. tan स्क्वायर 60 का वैल्यू √3 स्क्वायर माइनस 2 कोसाइन स्क्वायर 30 2 स्क्वायर tan स्क्वायर 30 1 by √3 स्क्वायर. √3 स्क्वायर 3 minus 2 square 4, 4 2s are 8, ये होगा 2/3. then take LCM, 9 minus 24 minus 2/3, that equal to 9 minus 26/3, that equal to minus 17/3. The next question is, the probability of guessing the correct answer of a certain test question is x by 12. If the probability of not guessing the correct answer is 5 by 6, then find the value of x. Let P of E plus P of E dash equal to 1. P of E x by 12 P of E dash 5 by 6, that equal to 1. ये प्लस 5 by 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो 1 minus 5 by 6 हो जाएगी. एलसीएम लेंगे 6 minus 5, 1 by 6.
देन x इक्वल टू ये 12 को इस तरफ क्रॉस करेंगे मल्टीपल हो जाएगी 6 और 12 को काटेंगे 2 टाइम्स देयरफॉर x इक्वल टू 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 644 का एलसीएम लेंगे, पहले 2 से जाएगी, 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, अगेन 2 से करो, 1 161 7 के टेबल से जाएगी, 2 7 सा 14, बैलेंस टू 21, 3 7 सा 21, सो 23 प्राइम नंबर 23 से ही जाएगी, सो दैट 1। नेक्स्ट वन 462 है हमारा, 462 अभी 2 से डिवाइड करें, 2 2 सा 4, 3 2 सा 6, 1 7 से जाएगी, 3 7 सा 21, 3 7 सा 21, अगेन 3 से करेंगे 11, सो 11 के टेबल से जाएगा तो 1। सो दैट हमारा एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए एलसीएम लेंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 23 मल्टीपल 11, दैट इक्वल टू 4 मल्टीपल 21, 23 मल्टीपल 11। सो इन सबको मल्टीपल करेंगे, 2 1 2 5 2। The next question is find the value of k so that the quadratic equation 4x squared plus kx plus 1 equal to 0 has real and equal roots. 4x squared plus kx plus 1 equal to 0. Real roots on the d equal to 0. Then here d is b squared minus 4ac equal to 0. b squared k squared minus 4 a4 and c is 1, that equal to 0. K squared minus 16 equal to 0. Then k equal to 6. K squared equal to 16. Then k equal to plus or minus 4. The next question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial p of y equal to y squared minus 5y plus 3, then find the value of alpha to the power of 4 beta cube plus alpha cube beta to the power of 4. Given p of y equal to y squared minus 5y plus 3. Sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a, that is 5. Then product of 0 alpha into beta equal to c by a, that equal to 3. हम फाइंड आउट करना है अल्फा टू द पावर ऑफ 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर ऑफ 4. टेक आउट द कॉमन टर्म्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब. Then bacha alpha plus beta. We have to find the values. Alpha plus beta is 5. Alpha and beta is 3. Then 3 cube multiple 5, that equal to 27 multiple 5, that equal to 135. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel.
सर्किल है ये, L and M are the tangent of the circle. And AB is the diameter of the circle. This is angle 1 and this is angle 2. Center of a circle O. Here angle 1 equal to angle 2, that equal to 90 degree. Angle 1 and angle 2 are alternate angles of a circle, are alternate angles. Therefore L parallel to M. The next question is, if the midpoint of the line segment joining the points A of 3, 4 and B of K, 6 is P of X, Y and X plus Y minus 10 equal to 0, then find the value of K. The line segment joining the points A of 3, 4 and B of K, 6. The midpoint is P of X, Y. तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. So therefore x कमा y equal to 3 plus k upon 2 कमा 4 plus 6 upon 2. That equal to 3 plus k Three plus k upon 2, 4 plus 6, 10, 10 by 2, 5. So that x equal to 3 plus k by 2 and y equal to 5. Put these values in the given equation. X plus y minus 10 equal to 0. The value of x is 3 plus k by 2 and the value of y is 5. Minus 10 equal to 0. Then take the LCM. Three plus k minus 5 equal to 0. 3 plus k by 2 equal to 5. Three plus k equal to 10. Therefore k equal to 10 minus 3, that equal to 7. The next question is, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A of minus 2, 2 and B of 2, 8 into 4 equal parts. We divide the line segment into 4 equal parts. A of minus 2, 2, B of 2, 8
The midpoints are P, Q and R. First, we find out the coordinate points Q. So AB equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2. So minus 2 plus 2 by 2 comma 2 plus 8 by 2 minus 2 plus 2 0, 0 by 2 0, 2 plus 8 10, 10 by 2 5. So we find the coordinate points Q 0 comma 5. Then we find the coordinate points of A Q, that equal to minus 2 plus 0 by 2 comma 2 plus 5 by 2 minus 2 by 2 1 minus 1, then 2 plus 5 7, 7 by 2. Then we find the coordinate points of BQ. Zero plus 2 by 2 comma 5 plus 8 by 2. 2 by 2 1, 5 plus 8 13, 13 by 2. The next question is, prove that 5 root 3 plus 2 upon 3 is an irrational number, given that root 3 is an irrational number. Let 5 root 3 plus 2 by root 3 be a rational number five root 3 plus 2 by root 3 equal to A by B, where A and B are integers. So 5 root 3 equal to A by B minus 2 by 3, 3A minus 2B upon 3B, then root 3 equal to 1 by 5 in 3A minus 2B by 3B. Root 3 equal to 3A minus 2B upon 15B. 3A minus 2B upon 15B is integers, but root 3 is irrational. By this contradiction to our supposition, 5 root 3 plus 2 upon root 3 is an irrational number. The next question is, prove that square root of sec a minus 1 upon sec a plus 1 plus sec a plus 1 upon sec a minus 1 equal to 2 cosec a. हमारा गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1. Take LCM, we get sec a minus 1 the whole squared plus sec a plus 1 the whole squared अपॉन में आएगी sec squared a minus 1. Then
ये होगा आपका sec a -1, ये होगा sec a +1, तो उनके स्क्वायर है, सो दैट स्क्वायर रूट के अंदर से हमने एक एक बाहर निकाल लेंगे। तो सेक स्क्वायर ये -1 का फार्मूला है tan स्क्वायर ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ये, तो -1 + 1 कट जाएगी, तो वी गेट्स 2 sec a, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ये tan a बन जाएगी। देन sec a का हम लिख सकते हैं 1/cos a, tan को हमने sin अपॉन cos लिख सकते हैं, सो इसका रिवर्स होगा cos a अपॉन sin a, cos कैंसिल हो जाएगी, तो 2 मल्टीपल 1/sin a, 1/sin a को हमने cosec a लिख सकते हैं, सो दैट इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/cos a - cos a, 1/sin a - sin a इक्वल टू 1/tan a + cot a। तो इसमें LHS RHS आप सेपरेट प्रूव करेंगे। LHS हमारा गिवन है 1/cos a - cos a, 1/sin a - sin a, इसको LCM लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर्ड a/cos a मिलेगी आपको। वैसे यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर्ड a/sin a, तो 1 - cos स्क्वायर्ड a इक्वल टू sin स्क्वायर्ड a अपॉन cos a, 1 - sin स्क्वायर्ड a इक्वल टू cos स्क्वायर्ड a अपॉन sin a, देन cos कैंसिल होगी, sin कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, दैट इक्वल टू sin a cos a। नेक्स्ट RHS लेंगे, गिवन है 1/tan a + cot a, tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो sin a अपॉन cos a, cot को cos अपॉन sin लिख सकते हैं, तो उसका LCM लेंगे नीचे, sin स्क्वायर्ड a + cos स्क्वायर्ड a अपॉन sin a cos a। sin स्क्वायर्ड a + cos स्क्वायर्ड a इक्वल टू 1 है, तो इसका रिवर्स करेंगे, sin a cos a अपॉन 1, that equal to LHS, hence proved। The next question is, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding minor segment. Given a circle, chord AB है, सेंटर पॉइंट वो लेंगे, chord AB, और subtend an angle, right angle, और रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 हो गया आपको, तो हमें ये माइनर आर्क फाइंड आउट करना है।
तो एरिया ऑफ ए सेक्टर OACB theta upon 360 into pi r squared. थीटा हमारा 90 डिग्री, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, और हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीपल 10, तो 0 0 कट जाएगी, 9 और 36 4 टाइम्स, देन ये 2 और 10 अगेन, 5 2s are 10, तो इसको मल्टीपल करेंगे, हमारा आंसर आएगी 3.14 मल्टीपल 25, हमारा आंसर आएगी 7850। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 78.50, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होती है, सो दैट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of a triangle OAB equal to half multiple B multiple H बेस मल्टीपल हाइट ऑफ, यहाँ पर बेस भी हमारा 10 है, हाइट भी 10 है, फाइव मल्टीपल 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट area of sector OACB minus area of triangle OAB, area of sector OACB minus area of triangle OAB, that equal to हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 tails, at least 1 head, at most 2 heads. So 3 coins को हम टॉस करेंगे, तब हमारा पॉसिबल आउटकम निकलेगी, तीनों में हेड हेड हेड, तीनों में टेल टेल टेल, एक में हेड दोनों में टेल टेल, एक में टेल दोनों में हेड हेड, एक में हेड दूसरी में टेल और तीसरी में हेड, और वैसे ही THT, देन 2 में हेड HHT, एक में टेल और दोनों में टेल TT, एक में H। सो हमारा पॉसिबल आउटकम 8 होगी। द फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आने का चांसेस 1 2 3 है, 3 में आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स मिलेगी, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 3
possible outcome 8. So that exactly 2 heads मिलने का probability 3/8. At least one tail आपको किस में मिलेगी? H छोड़ के बाकी सब में भी one tail मिलने का chances है. So that probability of one tail 7/8. Then at most 2 heads means maximum 2 heads आने का chances है. It can be 0 or 1 or 2. So that at most 2 heads में T ये छोड़कर बाकी सारे ये आने का chances है. Therefore 7/8. हमारा next question है, in the given figure PC is a tangent to the circle at C. AOB is the diameter which when extended meets the tangent P. Find angle CBA and angle BCO if PCA equal to 110 degree. Angle in the semicircle is 90 degree, so that angle ACB equal to angle BCO plus angle OCA, that equal to 90 degree. Angle PCA हमारा angle PCB plus angle BCO plus angle OCA. हमारा given PCA 110 degree, that equal to angle PCB, angle BCO plus OCA 90 degree है. Therefore angle PCB 110 minus 90 degree, that equal to angle PCB. So therefore angle PCB equal to 20 degree. Angle PCB plus angle OCB equal to 90 degree. PCB already हम find out कर रखे हैं 20 degree plus angle OCB that equal to 90 degree. Angle OCB equal to 90 minus 20, that equal to 70 degree. OB equal to OC, दोनों साइड्स इक्वल हो तो आपका एंगल भी इक्वल होगी. सो दैट एंगल OBC equal to OCB, angle OCB equal to 70 degree, because of angle opposite to equal sides are equal. Therefore angle OBC equal to angle CBA, that equal to 70 degree. Hence proved. Semi perimeter equal to 10 plus 10 plus 12 upon में 2, 32 upon 2, that equal to 16. Then area of triangle equal to square root of
S into S minus A, S minus B, S minus C. That equal to square root of 16, 16 minus 10, 16, minus 10, 16, minus 12. 16 multiple 6, multiple 6, multiple 4. 6 को आप 4 4 आर 16 लिख सकते हैं. 6 6 multiple 6, 4 का 2 multiple 2. तो ये दो 4 में से एक 4 बाहर निकलेगी, ये दो 6 में से एक 6, ये दो 2 में से एक 2. दैट इक्वल टू 6 2 आर 12, 12 इंटू 4 48, 48 centimeter squared. The next question, the sum of the third term and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. nth term find out करने के लिए फार्मूला a plus n minus 1 into d, so that third term a plus 2d, seventh term a plus 6d, इनकी सम हमारा 6 दिया हुआ, इन दोनों को प्लस करेंगे 2a plus 8d इक्वल टू 6. तो डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट a plus 4d equal to 3. Then a equal to 3 minus 4d हो जाएगी. Then इनकी प्रोडक्ट दिया हुआ हमारा a plus 2d, a plus 6d equal to 8. तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करा हुआ 3 minus 4d, तो इसको यहाँ पर a के जगह 3 minus 4d पुट करेंगे. इक्वल टू 8. तो 3 माइनस 2d, देन यहाँ पर ये भी आपका 3 माइनस 3 प्लस 2d इक्वल टू 8. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे 3 स्क्वायर्ड माइनस 4d स्क्वायर्ड इक्वल टू 8. तो 3 स्क्वायर 9, माइनस 4d स्क्वायर्ड इक्वल टू 8. 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर्ड. तो 9 minus 8, 1 equal to 4d squared. Therefore, d equal to plus or minus 1 by 2. a equal to 3 minus 4d. इसमें d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे. 3 minus 4 into 1 by 2. 2 टाइम्स कट जाएगी ये. तो 3 minus 2 दैट इक्वल टू 1. a की वैल्यू 1. हम सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो एस एन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो S16 इक्वल टू 16 by 2, 2 multiple 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1 by 2. दैट इक्वल टू इसको काटेंगे 8. 2 प्लस 15 by 2 दैट इक्वल टू 8 इंटू
एलसीएम निकालेंगे 4 + 15/2 8 × 19/2। तो उसको काटेंगे 4 × 19 76। If D equal to -1/2, then A equal to 3 - 4 multiple -1/2, that equal to 3 + 2, that equal to 5. Then S16 equal to 16/2, 2 × 5 plus 16 minus 1 into D. तो ये 8 टाइम्स कट जाएगी। 8 × 10 plus 15, D की वैल्यू -1/2। That equal to 8 × 10 - 15/2। LCM लेंगे 8 × 20 - 15/2। ये 8 और 2 4 टाइम्स कटेगी। 4 × 5, that equal to 20. The next question is, the minimum age of children eligible to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the ages of the participants when seated in order of age have a common difference of 4 months. If the sum of the ages of all the participants is 168 years, find the age of the eldest participant in the painting competition. तो स्टार्टिंग एज 8 ईयर दिया हुआ, सो दैट ए इक्वल टू 8 ईयर्स हो जाएगी। डी इक्वल टू 4 मंथ्स। सारे हमारा ये ईयर्स में है, सो दैट डी को भी हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4/12 दैट इक्वल टू 1/3 ईयर्स। तो D इक्वल टू 1/3 ईयर्स हो जाएगी। हमारा SN दिया हुआ 168। SN का फार्मूला n/2 2A + n - 1 into D। Here SN is 168. We have to find n/2. A is 8, 2 multiple 8 plus n - 1, D हमारा 1/3, D के जगह 1/3 पुट करेंगे। देन ये 2 को यहाँ क्रॉस करेंगे। 168 × 2 n into 2 × 8 16 प्लस ये n - 1 को 1/3 से मल्टीपल करेंगे। वी गेट n/3 - 1/3। ये 3 को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। 336 × 3 दैट इक्वल टू n into 48 प्लस n - 1। तो इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 1008 दैट इक्वल टू इसको भी n को भी अंदर लेके मल्टीपल कर लेंगे। 48n प्लस n² - n। देन ये 1008 को इस तरफ ले आएंगे। 48n - n 47n, तो n² प्लस 47n - 1008। अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े नंबरों में तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है, सो दैट हमने इसको LCM मेथड में फाइंड आउट कर लेंगे।
इसी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 5 2s are 10, 0, 4, then again 2, 2, 5, 2, again 2, 1, 2, 6, again 2, 6, 3. तो इतना ही फाइंड आउट कर लेंगे, आगे फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है हमारा. तो हमारा अब मिल गया 63 मल्टीपल 16. इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 1008 आएगी. 63 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 आ जाएगी. सो दैट n स्क्वायर्ड प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इक्वल टू 0. इन दोनों में से n को बाहर निकालती हूँ. n प्लस 63, इसमें से माइनस 16 को बाहर निकालेंगे तो n प्लस 63 इक्वल टू 0. तो इसमें से n प्लस 63 को बाहर निकालेंगे. इन दोनों में से n प्लस 63 कॉमन है तो बचा n माइनस 16. देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 63 और n इक्वल टू 16. हियर n is not equal to minus 63, so that n equal to 16. हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन. तो हमें ए भी मिल गया, n भी मिल गया, d भी मिल गया. a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 1/3, n इक्वल टू 16. तो टी एन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो टी 16 फाइंड आउट करना हमने. तो 8 प्लस 16 माइनस 1 15, डी 1/3. 3 और 5 कटेगी, सॉरी 15 कटेगी 5. तो 8 प्लस 5 13. सो दैट एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन इज 13 years. The next question is, in the given figure, PA, QB and RC are perpendicular to AC. If PA equal to X units, QB equal to Y units and RC equal to Z units, prove that 1 by X plus 1 by Z equal to 1 by Y. In given figure, triangle ABQ is similar triangle ACR. So that by BPT, AB upon AC equal to BQ upon CR. BQ हमारा Y दिया हुआ, AB upon AC equal to BQY है, CR हमारा Z है. So that AB upon AC equal to Y by Z. इसको इक्वेशन 1 रखेंगे. Then similarly triangle CBQ is similar triangle CAP. Therefore, BC upon AC equal to BQ upon AP. That BC upon AC इक्वल टू BQ हमारा Y है, AP हमारा X है. ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. Therefore, triangle ABD is similar triangle PQM.
in triangle ABC, and triangle PQR, AB upon PQ is equal to side BC upon QR, and angle B equal to angle Q. Therefore, triangle ABC is similar triangle PQR. Hence proved. हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. फर्स्ट हम वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट कर लेंगे. हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर दिया हुआ. वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड एच, दैट इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 मल्टीपल 5 हमारा हाइट है 8 सेंटीमीटर. तो इसको मल्टीपल करेंगे, हमारा आंसर है 5 5 25, 25 इंटू 8 200. 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. Then we have to find volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर का रेडियस दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, सो दैट 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. तो ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाएंगे. सो 1/2 कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगी. दैट इक्वल टू 4/3 मल्टीपल, दैट इक्वल टू 4/3 मल्टीपल 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. दैट इक्वल टू 4 ये 2 2s और 4 ये भी कैंसिल हो जाएगी. पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब. देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट. equal to 1/4 of volume of water in the cone. तो दैट इक्वल टू 1/4 मल्टीपल, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखे हैं 200 पाई अपॉन 3. 4 और 200 कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. देन नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स.
number of lead shots equal to 50 pi volume of water in the cone 50 pi upon 3 dividing by volume of sphere pi by 6 that equal to 50 pi upon 3 into 6 by pi. ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगी, ये 3 और 6 2 दैट इक्वल टू 100 लीड. हमारा अगला क्वेश्चन है, ए गार्डन डिजाइनर इज planning a rectangular lawn that is to be surrounded by a uniform walkway. The total area of the lawn and the walkway is 360 square meters. The width of the walkway is same on all sides. The dimensions of the lawn itself are 12 meters by 10 meters. Based on the information given above, answer the following questions. Formulate the quadratic equation representing the total area of the lawn and the walkway, taking width of the walkway equal to x meter. हमारा लेंथ ऑफ द गार्डन दिया हुआ 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन दिया हुआ 10 मीटर, और चारों तरफ आपको फुटपाथ के लिए आपको x मीटर लेना है. x मीटर हमें छोड़ा हुआ, ठीक है. ये चारों तरफ ही x मीटर है ये सब. सो दैट हमारा लेंथ ऑफ द गार्डन हो गया 12 प्लस एक्स 2x बन गई. सो दैट लेंथ ऑफ द गार्डन हो गया हमारा 12 प्लस 2x मीटर. देन ब्रेथ ऑफ द गार्डन 10 प्लस एक्स 2x 10 प्लस 2x मीटर हो गई. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है. सो दैट हमारा 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x. एरिया हमारा गिवन है 360 स्क्वायर मीटर. सो दैट इक्वल टू 360. देन 12 इंटू 10 120, इसको मल्टीपल कर लेंगे. 120 प्लस 24x प्लस 20x प्लस 4x स्क्वायर्ड इक्वल टू 360. 4x स्क्वायर्ड ट्वेंटी 4 प्लस 20 44x प्लस 120. ये 360 को इस तरफ ले आए माइनस 360 दैट इक्वल टू 0. देन 4x स्क्वायर्ड प्लस 44x. तो 360 माइनस 120 240 माइनस 240 इक्वल टू 0. देन डिवाइडिंग बाय 4 we get the quadratic equation x squared plus 11x minus 60 equal to 0. So that first question solve हो गई है. हमारा second question इसमें solve for x. So ये x solve करने के लिए मिड टर्म स्प्लिट करेंगे. तो x स्क्वायर्ड प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगी. टेक आउट द कॉमन टर्म x. तो x प्लस 15. देन टेक आउट द कॉमन टर्म माइनस 4 x प्लस 15 दैट इक्वल टू 0. देन x प्लस 15 x माइनस 4 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 15
और x equal to 4. So that हमारा width of the walkway equal to 4 meter. Width of the walkway. तो हमारा अगला पार्ट है, इफ द कास्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 per square meter इज ₹12,000. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे. तो एरिया ऑफ द वॉकवे फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल स्क्वायर मीटर दिया हुआ, रेट ऑफ स्क्वायर मीटर ₹50 दिया हुआ, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा एरिया निकल जाएगी. सो दैट एरिया ऑफ द वॉकवे equal to 12,000 upon 50. 0 0 कट जाएगी, या 5 और इसको 2 5 are 10, 4 5 are 20, 0. That equal to 240 meter. Then third part पूछा हुआ हमारा perimeter of the lawn. पेरीमीटर ऑफ द लॉन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला 2 × L + B. सो दैट इक्वल टू 2 × लेंथ हमारा 12, ब्रेथ हमारा 10. सो 2 × 12 + 10 22. दैट इक्वल टू 44 मीटर. हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन ए क्लिफ बाय द सी वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय. वन डे ए शिप इज seen approaching the shore, and from the top of the lighthouse the angles of depression of the ship are observed to be 30° and 45° as it moves from point P to point Q. The height of the lighthouse is 50 meters. हाइट ऑफ द लाइट हाउस ये भी 50 मीटर है. देन एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी एक्स है. ये 45 हो तो ये भी हमारा 45 होगी. देन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी एक्स. ये 30°, ये भी हमारा 30° होगी. तो हमने फाइंड आउट करना है ये पी क्यू डिस्टेंस. एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल क्यू बी एक्स, दैट इक्वल टू 45. then angle APB equal to angle PBX, that equal to 30°. तो इन ट्रायंगल AQB लेंगे. इन ट्रायंगल AQB tan 45 equal to AB upon QA. tan 45 की वैल्यू 1 है, तो ये भी हमारा हाइट दिया हुआ 50 अपॉन QA. सो दैट QA इक्वल टू 50 मीटर. इन ट्रायंगल APB tan 30 equal to AB upon PA. tan 30 की वैल्यू 1/√3, दैट इक्वल टू AB हमने
गिवन है 50 PA, सो दैट क्रॉस मल्टीपल करेंगे, PA इक्वल टू 50√3. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप. PQ equal to 50√3 minus 50. फिफ्टी कॉमन है, कॉमन का बाहर निकालेंगे, √3 - 1 मीटर. हमारा अगला पार्ट है, इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर and takes 10 minutes to travel from Q to A. Calculate the speed of the ship in km/h from Q to A. स्पीड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 50 मीटर, टाइम हमारा 10 मिनट्स, सो दैट इक्वल टू 50/10. इसको km/h में फाइंड आउट करने के लिए हमने डिवाइड करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, देन मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे 50/10 इंटू 60/1000. सो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 5 आवर 10 2 टाइम्स, 2 5 are 10, देन ये 2 आवर 6, 3 2s are 6, that equal to 3/10, that equal to 0.3 km/h. अगला क्वेश्चन है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table below shows subdivisions wise seasonal rainfall in 2023. Based on the information given above, answer the following questions. Write the model class. तो मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रेफ़र करता है. यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 7 है, 7 का बिल्कुल सीधी मॉडल क्लास हमारा 600 to 800. सो दैट मॉडल क्लास 600 to 800. हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. तो गिवन डेटा का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे. पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमने एक दूसरे को ऐड करते हुए आएंगे. हम फर्स्ट 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24. तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है L + n/2 - C/F × H. हमारा L लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 600 है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24, 24/2 12. C कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास हमारा 7 है, तो ये भी हमारा 7 है. तो F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये भी 7 है. हाइट क्लास ऑफ द विथ, दैट इज 200. +600 5/7 into 200, that equal to 600 plus 5 2s are 10, 1000/7. सो इसको हमने डिवाइड करेंगे, 1000/7 को डिवाइड करेंगे 142.86, that equal to
600 प्लस 142.86 प्लस करेंगे तो 742.86। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। गिवन सब डिवीजन को Fi लेंगे, गिवन सब डिवीजन 3, 4, 7, 4, 3, 3। XI हमारा क्लास मार्क है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 200 प्लस 400 अपॉन 2 300 आ जाएगी। In the same way 500, 700, 900, 1100 and 1300। देन Fi इंटू XI, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 900, then 2000, then 4900, then 3600, then 3300, then 3900। इन सबको प्लस करेंगे 18,600 और Fi को प्लस कर लेंगे 20। मीन का फार्मूला है सिग्मा Fx सिग्मा Fi इंटू XI अपॉन सिग्मा Fi। तो सिग्मा Fi इंटू XI हमारा 18,600 अपॉन सिग्मा Fi 24। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 775 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, इफ ए सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 मिलीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन is considered a good rainfall subdivision, then how many subdivisions had good rainfall? So at least 800 means 800 and more than 800, so that the places of 800 and more than 800 4 plus 3 plus 3 इन तीनों का प्लस करेंगे, we get the answer that equal to 10।